2015 ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਬੇਅਦਬੀ ਮਾਮਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਪਰੇ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਅਤੇ ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ ਗੋਲੀकांड ਨੂੰ ਅੱਜ ਪੂਰੇ 6 ਸਾਲ ਹੋ ਚੱਲੇ ਨੇ। ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ ਗੋਲੀकांड ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ ਵਿਖੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਹਾੜਾ ਮਨਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਸੰਗਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਮੌਕੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਆਪ ਆਗੂ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਆਈਜੀ ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਪਹੁੰਚੇ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ ਗੋਲੀकांड ਵਿੱਚ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਭਾਈ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਭਗਵਾਨ ਦੇ ਲੜਕੇ ਸੁਖਰਾਜ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ 6 ਸਾਲ ਬੀਤ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਆਸ ਨਹੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 2022 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਬੇਅਦਬੀ ਨੂੰ ਮੁੱਦਾ ਨਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਸਿਆਸਤ ਮੁੱਦੇ ਵਿੱਚ ਵਜੋਂ ਵਰਤਿਆ, ਉਸ ਦਾ ਪਤਨ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਚੋਣਾਂ ਮੁੱਦਾ ਨਾ ਬਣਾਵੇ। ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਮੁੱਦਾ ਬਣਾਇਆ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਆਪ ਆਗੂ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਆਈਜੀ ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਨੇ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਅਤੇ ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਭੜਾਸ ਕੱਢੀ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਉਸ ਮੁਤਾਬਕ ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਸੁਣਾਈ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਕੇਸ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸੁਣੋ ਅੱਗੇ ਕੀ ਕਿਹਾ, ਕਿਸ ਕਾਰਨ ਉਹਨਾਂ ਦਿੱਤਾ ਅਸਤੀਫਾ। ਸੁਣੋ ਤੁਸੀਂ ਆਈਜੀ ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਅਤੇ ਸੁਖਰਾਜ ਤੋਂ। देखो भाई 6 सालों का संताप सिख कौम ने भोग्या। साहब श्री गुरु ग्रंथ साहब की बेअदबी में अज 6 साल तो उपर का समा हो गया तो सरकारां भी इस इशू के उत्ते बन गई, पर बेअदबी कदे किते नहीं रोक सके। वो चाहे बेअदबी के दोषी होण जिन्होंने की उन्होंने नहीं फड़ सके तो बेअदबी करने वाले तो इन्होंने की रोकना सीगा। सो अज 6 साल के उस दुखांत तो बाद जिहड़ा 6वां शहीदी समागम उन्होंने शहीदों की याद च बਹਿਬਲ कलां हो रहा है। सो ਉਹਦੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਇੰਨਾ ਕੁ ਪ੍ਰਣ ਕਰੀਏ ਕਿ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ 2022 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜਾਂ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦਾ ਇਹ ਦਰਦ ਹੈ। ਬੇਅਦਬੀ ਜਿਹੜਾ ਦਰਦ ਹੈ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰੀਏ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਅੱਜ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਵਿਚਾਰਾਂ ਹਟ ਕੇ ਧਾਰਮਿਕ ਵਿਚਾਰਾਂ ਤੇ ਨੌਜਵਾਨੀ ਨੂੰ ਸੇਧ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਲੱਗਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਫੀ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਅਜੀਜ਼ ਵੀ ਚੇਂਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਆ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਜੋ ਬੈਂਸ ਨਵੇਂ ਲਾਏ ਗਏ ਨੇ, ਜਸਟ ਲਾਏ ਗਏ, ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲ ਸਕਦਾ। ਨਹੀਂ ਬਾਈ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਹੀ ਕੰਪਲੀਟ ਨਹੀਂ ਆ, ਕੁਛ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੱਥ ਪੱਲੇ ਹੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਤਾਂ ਇੰਨੀ ਹਸਤੀ ਨਹੀਂ ਆ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਇੱਕ ਰੱਖ ਸਕਣ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿਹੜਾ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿਹੜਾ ਕਦੋਂ ਬਦਲ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਬਸ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਨਾ ਇਹ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅੱਜ ਇਨਸਾਫ ਦੇ ਸਕਦੀਆਂ ਨਾ ਕੱਲ੍ਹ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਆਸ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਰੱਖਦੇ ਨਹੀਂ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਪੂਰਨ ਭਰੋਸਾ ਉਸ ਗੁਰੂ ਤੇ ਆ, ਉਹਦੀ ਕਚਹਿਰੀ 'ਚ ਜ਼ਰੂਰ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲੂਗਾ। ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਕੀ ਹਾਲ ਹੋਇਆ 84 ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਟੈਕ ਕਰਨ ਤੇ KPS ਗਿੱਲ ਵਰਗਿਆਂ ਦਾ ਕੀ ਹਾਲ ਹੋਇਆ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸਮੇਤ ਸੈਣੀ ਦਾ ਵੀ ਕੀ ਹਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜਦੋਂ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਤੁਰਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਕਚਹਿਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੀਏ ਵੀ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਉਸ 'ਤੇ ਪੂਰਨ ਭਰੋਸਾ ਵੀ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਇਨਸਾਫ ਉਹ 'ਚੋਂ ਮਿਲ ਜੂਗਾ। देखो मैं तो सिर्फ यही कहांगा कि बरगाड़ी के मुद्दे के उत्ते बहबल कला कोटकपूरा इन्होंने मुद्दों के उत्ते राजनीति बिल्कुल बंद हो जानी चाहिए है, क्योंकि आज 6 साल पूरे हो गए तो इंसाफ मिलिया नहीं। जो अकाली दल बीजेपी की सरकार सीगी 1.5 साल उन्होंने राज किया, उन्होंने राज के दौरान बेअदबी दी घटनावां वापरियां, गोलीबारी हुई बहबल कलां दे विच कोटकपूरा दे विच। मैं यही कहांगा कि जो कांग्रेस की सरकार आई सी ये कह के कि असी दोषियों को सज़ा दिलवावांगे, लोगों को इंसाफ दिलवावांगे, लेकिन वो दोषियों के नाल ही मिल गए। कैप्टन साहब की जिहड़ी सरकार सी उन्होंने कोटकपूरा की रिपोर्ट जो चलान सीगा ट्रायल चल रहा सी उस सरकार ने क्वैश करवाया और एक नवी सीट बनाई। बहबल कला दे विच देखो जो मेरी अपनी रिपोर्ट है चलान है उस दे उत्ते भी सुनवाई हो रही है, मैंने उस चलान दे उत्ते सुनवाई चल रही है, लेकिन सरकार कोई इंटरेस्ट नहीं ले रही है, डेट ते डेट पै रहा है। इस करके मैं नहीं समझदा हाँ कि ये सरकार गंभीर है। इस सरकार की सिंसीयरिटी इस गल दे नाल पता लगती है कि जो दोषियों के सब तो वड्डे वकील सीगे उन्होंने इन्होंने सरकारी वकील लगाया है, एडवोकेट जनरल लगाया है, जो कि इस मुल्क का संविधान भी उसके वास्ते इजाज़त नहीं दिंदा है। तो एक गैर संवैधानिक काम भी कर रहे हैं। जेकर दोषियों का वकील एडवोकेट जनरल लग गया असी पहला तो ही
ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੇਖੋ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ 18 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਇਸਤੀਫਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। 22 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 4 ਨਾਂ ਆਏ ਸੀਗੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਰਾਹੀਂ। ਤੇ ਮੈਂ 22 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਫਿਰ 23 ਨੂੰ, 24 ਨੂੰ, 25 ਨੂੰ, 26 ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਮੈਂ ਮਸਲਾ ਉਠਾਇਆ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਹੀ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਲਗਾਇਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੇਸ ਰਫਾ ਦਫਾ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤੇ ਅਸੀਂ इंसाफ की आस नहीं कर सकते इस सरकार को। पहले आप खुद इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे, अभी आप एक पार्टी में हो तो विरोध तो और ज़्यादा सवाल उठाएंगे आपसे। इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर दे रोल दे विच मेरा काम बिल्कुल बखरा है। क्यों? क्योंकि बहबल कला केस दे विच जो रिपोर्ट है, जो चलान है, वो आज ही अदालत दे विच उसे दे आधार पर सुनवाई हो रही है। जो रिपोर्ट कोर्ट कपूरा दी सीगी वो खारिज हुई सीगी, बहबल कला दी नहीं हुई सीगी। इस करके मैं कोई ऐसा बयान नहीं देना चाहता हाँ जिस दे नाल अदालती प्रक्रिया के उत्ते कोई प्रभाव पवे। सर आम आदमी पार्टी है उस दिन मैं ये कह रहे हैं जी सानू मौका मिलता है, ਅਸੀਂ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇਨਸਾਫ ਦਵਾਵਾਂਗੇ। देखो आम आदमी पार्टी की सरकार आऊगी तो देखो एक कांग्रेस सरकार ने जिस तरीके दे नाल वकील की नियुक्ति की, दोषियों के वकील की नियुक्ति की, जो फरीदकोट तो लेकर चंडीगढ़ हाई कोर्ट तक पेश होंदे रहे दोषियों वास्ते, तो इस तरीके का काम इन्होंने किया है। आम आदमी पार्टी की सरकार आएगी तो जाहिर है ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ट्रांसपेरेंसी रहेगी, ਵੱਡੇ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਵਧੀਆ ਵਕੀਲ ਕਰਨਗੇ क्योंकि तकरीबन तफ्तीश हो चुकी है और अपील मेरे वालों भी हुई है निजी तौर पर। जो तुम देखोगे जो रिपोर्ट खारिज हुई है कोर्ट कपूरा वाली, सरकार ने अपील नहीं की थी, लेकिन मैं डबल बेंच के सामने निजी तौर पर अपील की थी और 7 दिसंबर ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। और ਹੁਣ मैं ये ਵੇਖਦਾ ਹਾਂ कि ਪਹਿਲਾਂ मैं ये बोलता ਸੀ कि जेकर सरकार गंभीर है तो ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਸਹਾਇਤਾ करे, क्योंकि जेकर ਸਾਡੀ ਰਿਪੋर्ट बहाल हो जाती है तो कोर्ट कपूरा केस ਦੇ ਵਿੱਚ भी इंसाफ मिलन की आस मध जाऊगी। लेकिन जदों सरकार ने दोषियों के वकील ਨੂੰ ਹੀ एडवोकेट जनरल लगा दिता तो इस तो मनसा जाहिर है कि ये साडी अपील जड़ी है उस अपील की भी विरोधता करेंगे और ये कोशिश करेंगे कि अपील खारिज होवे। लेकिन तुसी देख लेना सच्चाई जो है ना, सच्चाई सामने आकर रहेगी। ਪਰ ਸਰ ਪਰਿਵਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਜਿਹੜਾ ਉੱਠ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੋਂ। विश्वास सारिਆਂ ਦਾ देखो मैं 13 अप्रैल ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਇਹ 9 अप्रैल ਨੂੰ फैसला आया, ठीक है, मैं इस्तीफा दे दिता। इस्तीफा देना IPS ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਛੋਟਾ काम नहीं ਹੁੰਦਾ है। IPS करना जिन्ना औखा काम है उस नालों 100 गुना औखा है IPS तो इस्तीफा देना। ये मंत्री MLA MP का इस्तीफा नहीं है कि आज इस्तीफा दे दो कल दोबारा तुसी मंत्री MLA MP बन जाओ। IPS के अहुदे तो एक बार बाहर आ गए दोबारा उस अहुदे के उत्ते नहीं जा सकते। तो जो मैं इस्तीफा दिता कई लोगों ने राजनीति शुरू की। तुसी देखोगे 13 तरीक ਨੂੰ बैसाखी वाले दिन मैं अपने फेसबुक पे लिखिया हाँ, आज भी तुसी पढ़ सकते हो कि कोई भी व्यक्ति, कोई भी लीडर, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी इस मुद्दे के उत्ते राजनीति ना करे, इस मुद्दे नूं पॉलिटिसाइज ना किया जाए, इस मुद्दे नूं ग्लैमराइज ना किया जाए। ये मैं पहला बेनती की सी। ते उस तो बाद चलो मेरा इस्तीफा जो मंजूर हो गया, मैं बाहर आ गया। लोगों ने कोशिश की सी ये कहन दी कि रिपोर्ट दे विच खराबी है। रिपोर्ट दे विच आज तक किसी को कोई खराबी नहीं लगी। जो हाई कोर्ट का ऑर्डर है 9 अप्रैल का तुसी देखोगे उहदे विच भी एक लाइन साडी रिपोर्ट के बारे टिक्का टिप्पणी नहीं की गई। तो मैं यही कहूँगा हाँ कि जेकर मान लो सुनवाई होंदी, गवाहां का बयान होंदा, फिर पता लगता कि कौन दोषी है कौन दोषी नहीं है। एक बादल परिवार खास करके सुखबीर बादल के खिलाफ ते प्रकाश सिंह बादल के खिलाफ उस चलान दे विच बहुत सारे सबूत सीगे। इस करके कैप्टन परिवार ने, कैप्टन सरकार ने उस रिपोर्ट ਨੂੰ जिस ਦੇ ਉੱਤੇ खुद सहमति भरी सी, उन्होंने खुद सर्टिफिकेट जारी किया सी कि चलान बिल्कुल सही है। तो सुनवाई चल रही सी, ट्रायल चल रहा सी, तो चार्ज ते बहस होनी सी, तो उन्होंने खारिज करवा दिता विचकार ही। तो उस दे नाल मनसा सीधी सीधी जाहिर हो जाती है। मैं उस दिन भी मैं फेसबुक पोस्ट ते लिख दिता सी कि मैं अपनी अपील गुरु गोबिंद सिंह जी दे जिद्दी जो अदालत है ना, वो सब तो सुप्रीम अदालत है, उस अदालत दे विच पा दी है। तो मैनू किसी तो कोई उम्मीद नहीं है कि जो मैं किया मतलब कानून के मुताबिक किया। और उस दे विच मैं ये भी कहा सी कि देखो मेरी रिपोर्ट का एक एक लाइन जो है ना अपने आप दे विच सबूत है और वो मैं गुरु गोबिंद सिंह जी अदालत दे विच अपनी अपील पा दी सी। और मैं ये कहा सी कि हुण जो इंसाफ होगा वो कुदरती इंसाफ होगा, नेचुरल जस्टिस होगा। और नेचुरल जस्टिस हो रहा है। तुसी देखो
जिस व्यक्ति ने राजनीति करनी शुरू की मेरे रिजाइन करन तो बाद पंजाब कांग्रेस की प्रधानगी मिली, उस व्यक्ति ਨੂੰ 3 महीने ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਰਿਜ਼ਾਈਨ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਰਾਜੀਨਾਮਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੋਵੇ। ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਖੁਦ ਕਿਹਾ 18 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸਤੀਫਾ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਜਲੀਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਲੀਲ ਕਰਕੇ ਇਸਤੀਫਾ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਜਲਾਲਤ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਰੱਖੀ ਸੀ। मैं कैप्टन साहब ਨੂੰ 1 दिन ਪਹਿਲਾਂ 9 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਖਾਰਿਜ ਹੋਈ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਮੈਡੀਕਲ ਲੀਵ ਤੇ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ, ਤਾਂ 8 ਤਾਰੀਖ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ 1 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਰਿਪੋर्ट ਨਾ ਖਾਰਿਜ ਕਰਵਾਓ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਰਿਪੋर्ट ਖਾਰਿਜ ਕਰਵਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ है। ठीक है, मैं बेनती की कि तुसी मैनू हटाना है हटा दो, लेकिन रिपोर्ट में तुसी ना खारिज करवाओ। मैं बेनती करके आया सी, लेकिन 9 तारीख ਨੂੰ अगले दिन ही ये सारा कुछ हो गया जो असी मतलब सानू पता लग रहा सी कि इस तरीके दे नाल सरकार दोषियों के नाल मिल गई है। तो कुदरती इंसाफ तो हुंदा ही है। कैप्टन साहब ने जलील होना पिया। जेकर कैप्टन साहब वो रिपोर्ट नहीं खारिज करवाउंदे तो उन्होंने जलील नहीं होना पैंदा, वो जलील होके गए ने। ठीक है, तो जो व्यक्ति इहदे उत्ते राजनीति करेगा तो दोषियों की मदद करेगा, खास करके बादल परिवार की जिन्होंने बेअदबी भी करवाई है, जिन्होंने गोली भी चलवाई है। कोटकपूरा दे विच गोली चल गई, 2 घंटे बाद बहबल कला दे विच गोली चल रही है। जेकर सरकार की रजामंदी ना होवे तो पुलिस का कोई अफसर सिपाही तो लेके DGP तक गोली नहीं चलवा सकता है। तो पहला कोटकपूरा दे विच इंजर्ड किया संगत नूं, हज़ारां की संख्या दे विच संगत दे विच लोग इंजर्ड होए सी। तो उस तो बाद बहबल कलां दे विच गोली चलाई गई। भाई कृष्ण भगवान सिंह जी शहीद होए, भाई गुरजीत सिंह शहीद होए, जिन्हां दी यादगार दे विच आज 6 साल बाद आज समागम रखिया होया है। तो मैं ये कहूँगा कि जेकर सरकार के खिलाफ दोष आ गया, सबूत आ गया, तो सरकार जो है दूसरी उन्होंने नाल रल गई दोषियों के नाल, तो रिपोर्ट को खारिज करवा रही है। तो मैं ये समझदा हाँ कि इंसाफ सरकार को या सिस्टम जो है साडे मतलब जो जुडिशियल सिस्टम है उस दे विच तुसीं देखोगे कि कोई छोटा मोटा दोषी होवे ना जी 10 दिन 15 दिन 20 दिन महीना 2 महीना वध तो वध 3 महीना लगता है, उन्होंने सजा करके जेल दे विच सुट दिता जाता है। तो दोषी का मतलब मान लो उन्हों का जो तुसीं कहोगे कि वो ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੋ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲੀ ਬਹੁਤ ਸਾਊਂਡ ਨੇ, ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਾਇਦਾ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਤੇ ਕੁਦਰਤ ਇਨਸਾਫ ਕਰਦਾ ਹੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, हर व्यक्ति के नाल इंसाफ करूँगा जो इस मुद्दे के उत्ते राजनीति करूँगा। तो इस करके राजनीति बंद होनी चाहिए है। मैं हर व्यक्ति को दोबारा मेरा 13 अप्रैल बैसाखी के दिन वाला पोस्ट तुसीं पढ़ लो, मैं सारिਆਂ ਨੂੰ बेनती की और अज भी बेनती करांगा कि इस मुद्दे के उत्ते राजनीति बंद होनी चाहिए है। तो जेकर कोई व्यक्ति इंसाफ दिलवाउण वास्ते कोई योगदान पा सकता है तो पा देवे। कोटकपूरा केस दे विच जो मेरी अपील है उस अपील की मैं पूरी पैरवाई करांगा। जेकर कोई मदद करना चाहे वो मदद कर सकता है। बहबल कला केस दे विच जो मेरी रिपोर्ट है उस दे उत्ते सैशन अदालत फरीदकोट दे विच सुनवाई चल रही है, उस मतलब समाबद्ध तरीके दे नाल उस दी सुनवाई सुनिश्चित कराई जाए, फिर इंसाफ मिलेगा। लेकिन राजनीति बंद होनी चाहिए है। अभी इलेक्शन का समय नज़दीक आ रहा है, आप भी एक नेता हो चुके हैं। मैं तो देखिए आज जो कुछ भी मैं बोल रहा हूँ आपके सामने, मैं पॉलिटिक्स या नेता के रूप में नहीं बोल रहा हूँ। मैंने इन्वेस्टिगेशन किया है, दूध का दूध पानी का पानी किया है और उसके आधार पर मैं बोल रहा हूँ। राजनीति की बात मैं यहाँ करने के लिए नहीं आया हूँ। मैं भी इस मुद्दे पर कभी राजनीति नहीं करूँगा, चाहे मैं एक राजनीतिक दल को ज्वाइन कर लिया है, इस मुद्दे पर मैं राजनीति नहीं करूँगा। लेकिन हर आदमी जो इस पर राजनीति करेगा उसको मैं मुंह तोड़ जवाब